Hi everyone, I hope you all are doing good. So, we're in October and it's almost November. So, this is almost the time where the actual fear mongering starts in the market, and there will be hundreds of people with their thousands of courses, due to which there are many people, especially the first attemptees, who, due to that fear and FOMO created, they straight away jump into the prelims preparation right from this point and thus compromising their crucial mains preparation. So, due to that, I thought, why not talk about prelims a bit? So, this video will really take care of your prelims, at least the basics, and what are the points that you should be clear about. So, via this video, I'll try contributing my 1% in reducing some amount of fear that the beginners might have. Actually, unneeded and unnecessary fear, which is created around prelims. So here I am, and I'll try in addressing many myths and doubts which you people may have, and I'll try keeping this video really short and to the point so that it can help you maximum. Okay, so some of the doubts that people have regarding prelims is that it is uncertain, which of course it is due to the huge level of competition. And then there is also a doubt that is there a current overload. And then some people also say that the difficulty is increasing, that the difficulty is increasing year by year. Like according to them the graph is like this, कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लेवल और बढ़ेगा. अरे कितना बढ़ेगा, ऐसे कहाँ ही जाके हम पहुँचेंगे? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, डोंट ट्रस्ट दैट. And then also these are various fancy materials which I am also coming across, which is absolutely not needed according to me if you just follow your basics. So you don't need any crash course, you don't need any such program. Okay, of course I'm not degrading anybody, but this is just my opinion. So we will talk about all of that later in the video, but right now I think I should straight away jump to the sources which I followed during my first attempt. So here I'll be like I'm making this video from the point of view of someone who is in their first attempt, like who will have their first attempt in 2026. So my first attempt was in 2023, and in that I scored about 80 marks in GS1, and it no I scored 86 in GS1 and 80 in CSAT. ठीक है, तो ये मेरे स्कोर थे इन 2023, विच लेटर टर्न आउट टू बी द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रीलिम्स. ठीक है, तो मैंने जो जो सोर्स फॉलो किए थे ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटैम्प्ट, एंड आई गेस दे वर्कड, सो आई विल बी टेलिंग यू अबाउट दैट. ओके, तो देखो, मैंने अगर मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात करूँ तो एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैंने आर एस शर्मा फॉलो की थी बाय हार्ट. लाइक दिस इज़ द एन सी आर टी ऑफ एंशियंट history, and this is a very very good book. Like this was one of my favorite books during that time. I really enjoyed reading that book. तो ये मैंने फॉलो की थी आर एस शर्मा. एंड उसके पहले मैंने तमिलनाडु बोर्ड की एक बुक आती है एंशियंट हिस्ट्री की, वो मैंने फॉलो की थी टू बिल्ड माई बेसिक्स. वाई डिड आई स्टार्ट फ्रॉम हियर? बिकॉज क्या था, मैंने मेरे स्कूल में कभी हिस्ट्री नहीं पढ़ी थी. लाइक आफ्टर 10th, मतलब जो भी बेसिक लेवल की हम पढ़ते हैं, तो उसके बाद मैंने नहीं पढ़ी थी हिस्ट्री. तो मेरे को कुछ भी याद नहीं था हिस्ट्री में. लाइक गुप्ताज मौर्याज मेरा बेसिक एकदम हिला हुआ था. तो जब मैंने एक्चुअली प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो जहाँ से हम स्टार्ट करने की सोचते हैं कि हम हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट करें, तो दिस बुक रियली केम हैंडी बिकॉज इसमें बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझाया हुआ है सब कुछ. प्लस द फॉन्ट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली आई फील, तो थोड़ी कम डॉन्टिंग लगती है ये बुक. तो दिस इज़ अ रियली गुड बुक. तो मैंने ये पढ़ी थी, फिर उसके बाद ये पढ़ी, एंड इन दोनों को ना मैंने कंबाइन कर लिया था. लाइक आई हैव अ डायरी, आई हैव माई ओन डायरी. ठीक है, तो ये डायरी में मैंने क्या किया था, मैंने जैसे मैंने बोला कि मैंने पहले तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ी, उसके मैंने नोट्स बनाए, एंड उसके बाद जब मैंने आर एस शर्मा पढ़ी ना, तो मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा दोनों में. ठीक है, कि मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स ही थे जो इसमें एडिशनल थे या जो इसमें नहीं थे, तो मैंने उसी में वो कंबाइन कर लिया. तो नाउ आई हैव बोथ ऑफ दीज बुक्स इन दिस वन नोटबुक. तो मैंने ऐसे कर लिया था, ये आप अपने हिसाब से कर लेना. ठीक है, उसके बाद एट दी एंड, लाइक जब हम प्रीलिम्स के एकदम पास पहुंच गए थे, जैसे कि अराउंड फेब या मार्च, उसमें मैंने लूसेंट भी एक बार ग्लांस कर लिया था कि कोई फैक्ट ना मिस हो जाए उसके लिए. तो मैंने ये किया था. मेडिवल के लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ी थी,
जैसे मतलब मैंने हिस्ट्री शुरू ही यहाँ से की थी तमिलनाडु बोर्ड से, तो मैंने मेडिवल के लिए भी यही किया एंड दिस वाज सफिशिएंट, आई थिंक, आई मीन मोर देन सफिशिएंट। इसके लिए मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी मेडिवल के लिए, बिकॉज क्या है कि मेडिवल की एनसीईआरटी जो है वो मुझे उतनी यूज़र फ्रेंडली नहीं लगती, लाइक बहुत ही ज़्यादा बल्कि लगी मुझे, और मुझे पढ़ने में हुआ भी नहीं वो, तो मैंने वो छोड़ दी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ट्राई नहीं किया, आई डिड ट्राई रीडिंग इट, बट मुझसे हुआ नहीं वो, तो मैंने ये छोड़ ही दी थी। गिवन दैट बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं या तो बहुत ही डिफ़िकल्ट आएंगे जो किसी से भी नहीं होंगे, तो आपको काम चलाने के लिए मेडिवल का बस टाइमलाइन वगैरह पता होना चाहिए, तो वो इस बुक से हो जाएगा। तो मैंने ये किया। सेम चीज़ मैंने लूसेंट, इसमें भी मैंने एट द एंड लूसेंट एक बार देख लिया था कि कोई फैक्ट ना रह गया हो, वो कर लिया था। अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो जैसे सब पढ़ते हैं, मैंने स्पेक्ट्रम करी बहुत अच्छे से, एटलीस्ट मैंने इसको 10+ टाइम पढ़ा होगा। और इसमें बिपिन चंद्रा सेम एग्जैक्टली मैंने वही किया। स्पेक्ट्रम जब मुझे अच्छे से बाय हार्ट हो गई, उसके बाद मैं एक दिन एनसीईआरटी लेके बैठ जाओ, आप 2 दिन या 3 दिन में आपकी एनसीईआरटी कवर हो जाएगी पूरी। तो आप पूरी की पूरी एनसीईआरटी लेके बैठो और उसमें जो भी आपको फैक्ट लगे कि थोड़ा एडिशनल है जो स्पेक्ट्रम में कवर नहीं है, वो इसमें आप ऐड कर लो। देखो यही करना होता है, लाइक जैसे लोग बोलते हैं ना कि वन सब्जेक्ट वन सोर्स। अब जिस सब्जेक्ट के लिए अगर हैं 2 बुक्स, लाइक स्पेक्ट्रम तो है हमारी, अब स्पेक्ट्रम हमें पता है कि वो एक गाइड बुक है, दैट्स नॉट दी ओरिजिनल, लाइक एनसीईआरटी नहीं है स्पेक्ट्रम, तो हम एनसीईआरटी को नहीं छोड़ सकते हैं इन सच सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब में। तो एनसीईआरटी पढ़ो, बट एनसीईआरटीज़ के साथ प्रॉब्लम ये होता है ना कि ये बहुत ही अच्छे वे में नहीं लिखी गई होती है, इट्स रिटन इन अ स्टोरी लाइक फॉर्मेट, थोड़ी एग्जाम फ्रेंडली नहीं होती है एनसीईआरटी। बल्कि स्पेक्ट्रम जो है वो एक गाइड बुक है, तो वो बहुत अच्छे से लिखी गई है। तो आप पहले स्पेक्ट्रम पे फोकस करो, उसको बाय हार्ट करो एटलीस्ट 10 टाइम्स। चलो 10 टाइम्स अगर ज़्यादा लग रहा है तो इनिशियली 5 टाइम्स पढ़ो। जब आप 5 बार स्पेक्ट्रम पढ़ लोगे तब आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर 2 दिन के लिए एनसीईआरटी लेके बैठो, जो भी आपको अलग फैक्ट लगी जैसे इसमें ऐड कर लो कहीं पे भी, यही मैंने किया था। एंड सिमिलरली फिर लास्ट में लूसेंट से फैक्ट एडिशन कर लिया। तो मेरी हिस्ट्री की ऑलमोस्ट अप्रोच सेम ही रही है ये सब, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट हिस्ट्री। नाउ कमिंग टू पॉलिटी के साथ मैंने क्या किया, ऑब्वियसली लक्ष्मीकांत पढ़ी थी पहले, तो वही जैसे मैंने बोला 10+ टाइम। अब दिस 10+ टाइम आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट इट, ठीक है, या मैं एग्जैजरेट भी नहीं कर रही हूँ, शायद मैं 10 टाइम्स कम ही बोल रही हूँ, बिकॉज मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट से पहले आई एक्चुअली रेड इट 10+ टाइम्स, ज़्यादा ही होगा उससे, बट मैंने बस ये लिखा है 10+ टाइम। तो 10+ टाइम से मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यू हैव टू बी एंडलेस विद रिविजन्स ऑफ योर स्टैटिक। तो ये आप हम लाइक यही है फोकस इसका कि 10+ टाइम मैंने इसीलिए लिख दिया है टू एक्चुअली शो यू कि आपको किस तरीके से बुक्स पढ़नी है। ऐसा नहीं कि 2 बार पढ़ लिया 3 बार पढ़ लिया, नो, 10+टाइम मतलब 10+टाइम। और लक्ष्मीकांत के अलावा मैंने बैरैक जस्ट ग्लैंस किया था, ऐसा नहीं कि पूरा पढ़ा था। कुछ कुछ जो मेन चैप्टर्स होते हैं ना बैरैक के, जैसे हमारा फंडामेंटल राइट हो गया, उस पर मैंने एक बार गो थ्रू कर लिया कि कुछ एडिशनल तो नहीं है, जस्ट वेरी बेसिक ग्लैंस वो कर लिया था फंडामेंटल राइट्स पे। फिर जैसे चैप्टर हो गया पार्लियामेंट का, मतलब जिस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो चैप्टर एक बार जस्ट ग्लैंस कर लिया था। इसकी समरी भी मिल जाएगी आई थिंक कहीं पे, यूट्यूब पे या कहीं पे भी अगर आप देखोगे तो आपको समरी मिल जाएगी अगर आपको चाहिए, तो आई जस्ट डिड दैट। अब ज्योग्राफी की बात करें तो पॉलिटी में मैंने इतना ही किया था। ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूँ तो ज्योग्राफी के लिए मैंने सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो की, उसके अलावा और कुछ नहीं देखा था ज्योग्राफी के लिए। तो एनसीईआरटीज़ पढ़ी एंड उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वो एक ब्लू वाली जो बुक है एनसीईआरटी, उसमें कुछ कुछ उसमें इंटायरली इट इज़ कॉन्सेप्चुअल, ठीक है। तो मुझे जो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते थे उसके लिए मैंने यूट्यूब बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया। जैसे मुझे याद है जब मैं आई वॉज रीडिंग टेम्परेट साइक्लोन, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था वो, मतलब मैंने बहुत ट्राई किया रीड कर करके पर मुझसे समझ ही नहीं आया वो। तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी टेम्परेट साइक्लोन को समझने के लिए, एंड यूट्यूब पे काफ़ी अच्छी एनिमेटेड वीडियोस हैं फॉर जोग्राफी, so you can definitely, like, you should use YouTube extensively for geography. So this was it for geography. Now moving to environment के लिए मैंने for my foundation I did शंकर IAS। तो शंकर IAS की बुक में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई हैं, जैसे पोल्यूशन वाला एक थीम होता है, फिर होती है हमारी क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशंस, फिर होती है बॉडीज़, 3-4 पार्ट्स हैं एनवायरनमेंट में। मैं इसकी अगर आप लोग बोलोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूँगी एनवायरनमेंट के लिए, सब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज़ के लिए। वैसे इसमें क्या होता है कि एक तो पोल्यूशन वाली थीम होती है, एक हमारा क्लाइमेट चेंज होता है और एक हमारी होती है बॉडीज़। तो ये तीनों चीज़ें इसमें काफ़ी अच्छे से हो जाएंगी।
तो शंकर IAS से हो जाएगा। उसके बाद मैंने लूसेंट के साथ किया था हिस्ट्री में, वो सेम मैंने PMF के साथ किया है यहाँ पे। PMF IAS की जो बुक आती है बहुत ही बल्कि बुक है, अराउंड 800 पेजेस की, तो पूरी पढ़ने मत बैठना। मैंने शंकर किया एट द एंड, मतलब शायद मार्च के अराउंड, जब मेरे को शंकर बाय हार्ट हो गई। तो जब मेरे को शंकर बाय हार्ट हो गई थी, उसके बाद मैं PMF लेके बैठी, और जो भी टॉपिक मुझे इसमें थोड़ा सा अनकवर्ड लगा या मुझे थोड़ा वीक लगा, वो मैंने PMF से वापस देखा और अगेन मैंने वही किया। इसके जो एडिशनल फैक्ट्स या एडिशनल टॉपिक्स मुझे मिले जो शंकर में नहीं थे, वो मैंने यहाँ पे जस्ट कॉपी कर लिया। अब ये कॉपी कैसे करना है, एडिशंस कैसे करने हैं एक बुक के दूसरे बुक से, वो भी मैं बताऊंगी बाद में, ठीक है। दैट डिपेंड्स कि आप हार्ड कॉपी में बना रहे हो या आपके पास PDF है, एंड इसका भी तरीका है एक, दैट आई विल टेल यू लेटर, ठीक है। तो मैंने शंकर किया एंड PMF से एडिशंस कर लिए, प्लस एनवायरनमेंट मैंने इसके साथ साथ ये भी किया था कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इनकी वेबसाइट पे जाके इनका जो अबाउट अस वाला सेक्शन होता है, वो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, प्लस इनके जो इनिशिएटिव्स होते हैं स्पेशली विद UNEP, IUCN एंड WWF। अब क्योंकि क्या होता है कि हमसे जो एग्ज़ाम होता है उसमें डायरेक्टली ये पूछ लेंगे कि दिस इज़ द इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सब थोड़ा कवर करने के लिए मैंने ये वेबसाइट्स को थोड़ा एक्सप्लोर कर लिया था, ठीक है। एंड वन मोर थिंग फॉर एनवायरनमेंट व्हाट आई डिड इज़, जो PYQs हैं हमारे एनवायरनमेंट के, उसके मैंने ऑप्शंस को बहुत थॉरली रिसर्च किया। तो जैसे PYQ की कोई भी मैंने ऐसे खोल लिए कि PYQ प्रीलिम्स गूगल से ही, और जो जो ऑप्शन आते रहे मैं सिर्फ उसको कॉपी करके गूगल पे और जो भी उसके बारे में पढ़ती गई, और एक अलग डॉक्यूमेंट पे उसको कॉपी पेस्ट करती गई। तो ये मैंने एनवायरनमेंट के लिए किया था, बिकॉज एनवायरनमेंट में जैसे अगर हम स्पीशीज़ वाला टॉपिक पढ़ेंगे कि एनवायरनमेंट में स्पीशीज़ के बारे में बहुत पूछते हैं, तो बहुत सारे PYQ का ऑप्शन रिपीट होते हैं। तो स्पीशीज़ पढ़ने के लिए स्पेशली मैंने ये मेथड यूज़ किया था। तो ये आपको करना चाहिए PYQ के ऑप्शंस को सर्च करके। तो ये किया मैंने एनवायरनमेंट का। तो एनवायरनमेंट का मेरा यही था पर्टिकुलरली। इसमें मैंने मैपिंग इंक्लूड नहीं की है अभी, मैपिंग के बारे में आगे बताएंगे, ठीक है। सो दिस वॉज इट फॉर एनवायरनमेंट। अब इकोनॉमी के लिए मैंने विवेक सिंह सर की बुक आती है इकोनॉमी की, इंडियन इकोनॉमी की, वो यूज़ की थी फॉर बेसिक्स, ठीक है। तो बेसिक्स मेरे वहाँ से हो गए थे। अब एंड येस, मैंने 2021 में GS की क्लासेस ली थी फ्रॉम शुभ्रा रंजन IAS। उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो दैट वाज अ टैबलेट कोर्स, ठीक है। तो हमको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते थे, या मतलब लाइव लेक्चर्स भी थे, रिकॉर्डेड भी थे, तो वो हमें मिलते थे एंड दैट आई यूज़ टू वॉच। तो उस टाइम पे विवेक सर पढ़ाते थे शुभ्रा रंजन मैम के कोचिंग में, तो वहाँ पे मैंने सर की क्लासेस भी करी थी इकोनॉमी की, और उसके बाद सर की ही बुक से मैंने इकोनॉमी फॉलो किया था फॉर GS। मेरा ऑप्शनल भी है इकोनॉमिक्स, तो मेरा थोड़ा थोड़ा वहाँ से भी आइडिया था, प्लस ड्यूरिंग माई कॉलेज ऑल्सो आई हैड इकोनॉमिक्स। बट अगर आपका ऑप्शनल नहीं है एंड यू आर रीडिंग इकोनॉमी फॉर द फर्स्ट टाइम, सर्स बुक इज़ रियली गुड, लाइक आई फाउंड इट रियली नाइस। तो इकोनॉमी के लिए यही किया था मैंने, बुक फॉलो की थी सर की, और क्लासेस जो मेरी कोचिंग में थी वो किया था, प्लस मैंने सर्वे और बजट को भी अच्छे से पढ़ा था फॉर ट्रेंड्स। जो हमारे ट्रेंड्स वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, जैसे कि इंडिया का फॉरेन डेफिसिट 2% से कम है, या हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 3.5% से कम है, ये सब वाले जो ट्रेंड्स वाले क्वेश्चन आते हैं कि रुपी और डॉलर जो मतलब एक्सचेंज रेट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग डाउन, ये सब क्वेश्चंस हमारे सर्वे में बहुत अच्छे से कवर्ड होते हैं। तो इन चीज़ों को कवर करने के लिए मैंने सर्वे और बजट पढ़ा था, मैंने खुद से पढ़ा था उस टाइम पे। लाइक बजट की जो विजन IAS की बुकलेट आती है, 10 पेजेस की बुकलेट आती है, उसमें सारा बजट के इनिशिएटिव्स होते हैं, और सर्वे के लिए विजन IAS का वो आता है, सर्वे की समरी जो आती है चैप्टर वाइज। तो मैंने वो चैप्टर वाइज पढ़ी थी खुद से और खुद के नोट्स बनाए थे, तो ये मैंने इसके लिए किया था। नाउ फॉर साइंस व्हाट आई डिड इज़, अगेन जो मैंने बोला कि मेरी कोचिंग की जो क्लासेस थी वहाँ पे बेसिक्स कवर हो गए थे इसके, बायोटेक। अब आई एम नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, ठीक है, तो मुझे भी नहीं आते थे ये सब उतने अच्छे से, तो ये सब कोचिंग में उन्होंने एक बार बता दिया था कि बायोटेक क्या होता है। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स फॉर वंस, उसके बाद मैंने क्या किया, जो इनके जो नोट्स मिले थे वो पढ़े, प्लस वो भी अगर मुझे सफिशेंट नहीं लगते थे, देयर इज़ दिस वेबसाइट लोटस अराइज करके एक वेबसाइट है गूगल पे, आप ये करना, इन्होंने सारे स्टैटिक नोट्स साइंस के डाले हुए हैं, काफ़ी एक्सटेंस लाइक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, नोट्स मिल जाएंगे आपको स्टैटिक के। तो साइंस का अगर आपको लाइक एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में सारा नोट्स चाहिए तो आप यहाँ से देख सकते हो। अब मुझे नहीं पता कि ये अपडेट है या नहीं है, क्योंकि मैंने उस टाइम पे यहीं से
हेल्प लिया था लोटस राइज वेबसाइट से। अब आई एम श्योर और भी बहुत सारी वेबसाइट्स होंगी जहाँ पे साइंस के लाइक स्टैटिक नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख लेना ये। बाकी मैंने यही किया था, थोड़ी क्लासेस में फाउंडेशन समझ लिया एंड उसके बाद किसी भी वेबसाइट पे जाके नोट्स देख लिए, प्लस इसके साथ करंट ऑब्वियसली जो भी जो विजन की मंथली मैंने पढ़ी थी करंट के लिए, तो वहाँ से जो साइंस वाला सेक्शन होता था वहाँ से भी कवर हो जाता था। प्लस ऑफकोर्स जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आती थी उसके लिए मैंने यूट्यूब को यूज़ किया। तो दिस वॉज फॉर साइंस। नाउ करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या किया था, बहुत ही सिंपल चीज़ की थी मैंने। लाइक करंट अफेयर्स को मैंने उतनी इंपॉर्टेंस कभी नहीं दी थी। इवन ड्यूरिंग माई फर्स्ट अटैम्प्ट मैं विजन मंथली पढ़ती थी रेगुलरली मतलब मैंने राइट फ्रॉम व्हेन आई बिगैन द प्रेपरेशन, आई मीन स्ट्रक्चर प्रेपरेशन, तो मैंने 2022 के जनवरी से मंथली मैगज़ीन पढ़ना शुरू कर दिया था। मैंने जनवरी से पढ़ी थी। तो लोग जून से पढ़ते हैं, लाइक 1 साल पहले मैंने जनवरी से पढ़ी थी। दैट इज़ अप टू यू। तो मैंने जनवरी 2022 से मंथलीज़ पढ़ी थी और मैं हर मंथ पढ़ती थी और उसको रिवाइज़ भी करती थी। एंड उसके साथ मैं क्या करती थी कि इनसाइट आईएएस करके एक वेबसाइट है, उनके ना डेली करंट अफेयर्स आते हैं जो वो डेली अपडेट करते हैं अपनी वेबसाइट पे। तो इस पेज को भी मैं फॉलो करती थी राइट फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, तो अब मैंने 2022 से ही इसको फॉलो करना शुरू किया था। ये मुझे बहुत हेल्प किया इस वेबसाइट ने। तो ये डेली अपने करंट अफेयर्स अपडेट करते हैं, प्रीलिम्स के लिए मेंस के लिए दोनों के लिए। तो मैं यहाँ से भी डेली करंट अफेयर्स पढ़ लेती थी, तो इसने भी काफ़ी हेल्प किया। अब इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने प्री 365 करी थी फॉर प्लेसेस इन न्यूज़ वाले सेक्शन के लिए। ठीक है, तो आईआर में मैंने इतना ही किया था। प्लस जो ऑर्गेनाइजेशंस वाले आती हैं वो मैंने शायद शंकर आईएएस का एक वो आता है, शंकर आईएएस की एक बुकलेट आती है जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस का बेसिक कवर्ड है, तो वो मैंने यहाँ से किया था। और प्लेसेस इन न्यूज़ के लिए मैंने यहाँ से किया था प्री 365 से। अब मैपिंग की बात करें तो मैपिंग के लिए मैं क्या करती थी कि मेरे रूम में वॉल मैप्स हैं, तो मैं हमेशा लाइक डेली फॉर 5-10 मिनट्स आफ्टर डिनर या फिर ऐसे ही वॉक करते करते ये मैं करती थी। लाइक आई यूज़ टू हैव अ डेली ग्लैंस एट दी वॉल मैप। तो इससे क्या हुआ था कि एट दी एंड लाइक जब तक हम प्री के पास पहुँचे थे मेरे माइंड में ऑलरेडी पूरा वर्ल्ड मैप फिक्स हो गया था कि कौन सी लोकेशन कहाँ है, जो आइलैंड ग्रुप्स हैं, तुवालू, ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में फ़िक्स हो गई थी। तो दिस हेल्प्ड मी रियली अलॉट। दूसरा, जब मैंने प्रेपरेशन शुरू की थी तो एक बेसिक्स आइडिया के लिए हम मतलब हर किसी को नहीं होता उतना आइडिया वर्ल्ड मैप का, तो बेसिक के लिए मैंने सुदर्शन सर के जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं कॉन्टिनेंट वाइज वो कवर कराते हैं बहुत अच्छे से, मैंने ये एक बार देख लिया था। ये एक बार देखने के बाद मुझे पता चल गया था कि अच्छा ये सब चीज़ें होती हैं। एंड इसके बाद मैंने फिर ये किया, लाइक एक बार बेसिक क्लियर कर लो अपना किसी भी वीडियो सीरीज़ से, एंड उसके बाद अपने रूम में वॉल मैप लगाओ एंड डू दिस। तो आप जब डेली उसको देखते रहोगे ना तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। एंड इवन इन दिस प्रीलिम्स 2025 वाला जो प्रीलिम्स था उसमें एक क्वेश्चन आया था ना कि एक क्वेश्चन था ऐसे ही कि शायद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कौन कौन सी कंट्रीज से पास करता है, या एंडीज़ माउंटेन रेंज कौन कौन सी कंट्रीज से पास करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी अगर आप ये डेली करोगे तो, एंड विदाउट एनी एफर्ट। क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो एट दी एंड हमें प्रॉब्लम होती है, इंटरनेशनल रिलेशन में भी प्रॉब्लम होती है, इन प्लेसेस इन न्यूज़। एंड अगर आपका ये पार्ट स्ट्रॉन्ग है, आपको अच्छे से वर्ल्ड मैप की अच्छे से नॉलेज है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी हो जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल व्हाट आई डिड। ठीक है, तो अगर मैं सोर्सेज़ की बात करूँ तो ये थे मेरे पूरे सोर्सेज जो मैंने फॉलो किए थे। अब ये तो बेसिक सोर्स थे। ठीक है, अब अगर वैल्यू एडिशन के लिए अगर कोई पूछेगा कि वैल्यू एडिशन के लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो वैल्यू एडिशन का मेरा ओनली सोर्स ये था, जो भी मैंने टेस्ट मैं मार्केट से लेके आती थी टेस्ट, ये जो मैं करती थी और टेस्ट के जो सोल्यूशंस होते थे उसने क्या किया, उसने जो हमारी कवरेज होती है उसको ब्रॉड किया। मेरी जितने भी मैंने यहाँ से ये सब चीज़ें पढ़ी उसको ब्रॉड करने में टेस्ट ने हेल्प किया। प्लस PYQ सोल्यूशन, जैसे मैंने बोला मैंने एनवायरनमेंट के लिए किया था, और आप ये हर चीज़ के लिए कर सकते हो। लाइक मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स के लिए तो उतने अच्छे से नहीं किया था जितना मैंने एनवायरनमेंट के लिए किया, बट दिस शुड बी डन फॉर एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये कर लो तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो दिस वॉज इट अबाउट द सोर्सेज। अब मैं आपको जो एडवाइस करूँगी वो ये है, मतलब ये चीज़ें मैंने मेक श्योर की थी कि दिस वॉज फर्स्टली वॉज रूथलेस रिविजन ऑफ स्टैटिक, जैसे मैंने पहले भी बोला इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। लाइक प्रीलिम्स इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट दिस रूथलेस रिविजन। एंड रूथलेस का मतलब ये है मिनिमम 10 टाइम्स।
चाहे वो लक्ष्मीकांत हो, चाहे वो स्पेक्ट्रम हो। मेक श्योर कि जब आप पहली बार लाइक फर्स्ट यू एंटरिंग द प्रीलिम्स हॉल, आपने ये किया है। अगर ये नहीं होगा ना तो क्या होगा कि ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होगा। और अगर आपके स्टैटिक पे बहुत अच्छा होल्ड है तो यू विल हैव कॉन्फिडेंस, और लाइक नो बडी कैन स्टॉप योर प्रीलिम्स ऑफ कोर्स एक्सेप्ट एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि बेयर मिनिमम करंट, लाइक आई डिड नॉट गो ब्लाइंडली बिहाइंड करंट। मैंने कभी ये नहीं किया कि यार करंट के लिए ये कर लूँ वो कर लूँ, नहीं। एक सोर्स फॉलो किया जो सब लोग फॉलो करते हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, इस एग्ज़ाम में आपको वो पक्का करना है जो सब लोग कर रहे हैं, उसमें यू कांट लैग बिहाइंड दैट। तो जो सब क्या करते हैं, विजन ही है जो एक इतना ज़्यादा, आई थिंक 99% लोग विजन फॉलो करते हैं। मैंने भी विजन फॉलो किया और बस विजन ही फॉलो किया। उसके अलावा हाँ, इनसाइट और फॉलो किया था क्योंकि वो मुझे, दैट वाज माय पर्सनल चॉइस, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता था और काफ़ी अच्छे से मुझे समझ आती थी चीज़ें, तो मैंने ये किया। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। कोई भी करंट के MCQs, करंट के टेस्ट, अब मैंने मतलब ये भी देखा था कि उस टाइम पे ऐसा भी होता है कि मंथली MCQs भी आते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ मैंने ये किया और ये किया। उसके बाद नो फोमो ऑफ फैंसी मटीरियल्स, ये मत करना। कोई हमें फोमो नहीं चाहिए कि कोई आज ये मटेरियल आ रहा है कल ये मटेरियल आ रहा है, नो। एंड टू बी ऑनेस्ट मेरे को पता भी नहीं था उतना, मतलब उतना ज़्यादा उस टाइम पे मैं टेलीग्राम पे एक्टिव नहीं थी कि ये सब आज तो बहुत अबंडेंस हो गई है टेलीग्राम मटेरियल की, तो ये नहीं करना है। दूसरा टेस्ट, मैंने जो टेस्ट किए थे मैंने सेक्शनल टेस्ट ज़्यादा दिए थे, मैंने फुल लेंथ टेस्ट नहीं दिए थे। अब ये अगेन मेरी पर्सनल चॉइस थी। क्यों थी? बिकॉज मेरे लिए टेस्ट का जो मोटिव था वो ये था कि मेरी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए स्टैटिक की। तो मैं हर सब्जेक्ट का स्टैटिक टेस्ट उठाती थी, और मेरी गैप्स क्या हैं उस सब्जेक्ट में उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैं टेस्ट को यूज़ करती थी। एंड फॉर दैट आई थिंक सेक्शनल्स वर्क्स द बेस्ट। मुझे फुल लेंथ टेस्ट उतने ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं लगते थे, लाइक जो 100, मतलब फुल लेंथ का मेरा मतलब है पूरा सब्जेक्ट का जो टेस्ट होता है एक, वो, या फिर सॉरी, फुल सिलेबस का टेस्ट होता है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, वो मैंने नहीं लगाए थे, शायद 2-3 ही लगाए होंगे बस। एक्चुअली मैंने अभ्यास दिया था, विजन का जो अभ्यास होता है प्रीलिम्स का, तो उसमें जितने फुल लेंथ होते हैं ना 3 होते हैं, बस मैंने वही दिए थे। उसके अलावा मैंने खुद के एंड से सिर्फ सेक्शनल टेस्ट दिए थे। फिर मैंने ये टेस्ट के नोट्स बनाए थे बहुत अच्छे से, एंड उसको मैंने रिवाइज़ किया था। अब ये वाला पार्ट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस करने वाली हूँ कि आप टेस्ट को किस तरीके से यूज़ करो, कौन कौन से टेस्ट मैंने फॉलो किए थे, वो भी मैं डिटेल वाइज आपको बता दूँगी अच्छे से। एंड उसके नोट्स कैसे बनाने हैं, उसको रिवाइज़ कैसे करना है, बिकॉज दिस पार्ट आई थिंक वॉज अ मेजर पार्ट इन माई प्रेपरेशन टेस्ट एंड उसके सोल्यूशन। अब उसके बाद मैंने अपने प्रेपरेशन में 3 साइकिल्स ऑफ रिविजन रखा था, सिंस जनवरी टू मई। 5 महीने मैंने दिए थे प्रीलिम्स के लिए, तो मैंने जनवरी से शुरू किया था एंड मई में प्रीलिम्स था। तो इस बीच मैंने 3 साइकिल्स ऑफ रिविजन रखे थे। ये पूरा का पूरा शेड्यूल है मेरे पास, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। एंड उसके बाद ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस क्यों ज़रूरी है? एक तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ, आपका मेंटल कॉन्फिडेंस आपका इतना हाई होना चाहिए कि यू नो हमें डर के नहीं जाना है प्रीलिम्स हॉल में। बट इसका एक लॉजिकल रीज़न ये है कि अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे, अगर आपको अपनी प्रेपरेशन पे कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैंने बहुत अच्छे से किया है, मैंने सारे बेसिक सोर्सेज फॉलो किए हैं, बेयर मिनिमम करंट किया है, टेस्ट सीरीज़ अच्छे से फॉलो किया, टेस्ट सीरीज़ या टेस्ट जो भी अच्छे से दिए हैं, उनके नोट्स को रिवाइज़ किया है, उनके सोल्यूशंस को, उससे क्या होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन को देख के आपको ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि इफ़ आई डोंट नो दिस क्वेश्चन, नो वन एल्स विल नो इट, और एटलीस्ट 99% पीपल विल नॉट नो इट। ये कॉन्फिडेंस अगर आपको आ गया ना, इससे क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन बेसिक सोर्स से आया है और कौन सा क्वेश्चन बेसिक सोर्स के बाहर आया है। तो ये आपको हेल्प करेगा इन लीविंग आउट क्वेश्चंस, बिकॉज प्रीलिम्स में ना क्वेश्चंस अटेम्प्ट आप कौन सा कर रहे हो, उतना ही इंपॉर्टेंट ये है कि आप कौन सा क्वेश्चन छोड़ रहे हो। अब ये सोचो, अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है अपनी प्रेपरेशन पे, तो आपको हर क्वेश्चन लगेगा कि यार ये तो बेसिक हो सकता है, शायद मुझे नहीं आता है, तो आप वो भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे या तुक्का मारने की कोशिश करोगे। बट इफ़ यू हैव द कॉन्फिडेंस कि हाँ यार ये मुझे नहीं आता है, मतलब कि ये आउट ऑफ सिलेबस आया है, तो इसको छोड़ सकते हैं कि किसी को नहीं आता होगा, तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो। सो मेक श्योर दैट, एंड ये कब आएगा, जब आपने अपनी अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशन अच्छे से की हुई है। जो भी मैंने बताया कि अपने बेसिक सोर्सेज अच्छे से फॉलो करो, स्टैटिक का रूथलेसली रिविजन करो, करंट का बेयर मिनिमम अच्छे से रखो। प्लस अब मैं अगर ये बात करूँ कि 2023 का जो प्रीलिम्स था, दैट वाज अ रियली डिफ़िकल्ट पेपर। ठीक है, अब प्रीलिम्स हॉल के अंदर बैठ के मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ ये कि ये कुछ ज़्यादा ही चेंज आया, मतलब हाँ, पेपर देख के लगा था कि यार ये
ओनली वन ओनली टू कर दिया इन्होंने, ये क्या है मतलब, ठीक है, बट इससे ज़्यादा थॉट नहीं आया मुझे कि मतलब ऐसा वाली हालत नहीं हुई थी कि मैं रोने लगूँ वहाँ बैठ के। लाइक आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, ठीक है, इसको कुछ ऐसा ब्रैगिंग है वो सब मत बताना, मत समझना। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू माई एक्सपीरियंस। मैं प्रीलिम्स हॉल में बैठ के मुझे ये बस एक बार थॉट आया था कि मैं पेपर पलट रही थी कि अरे ये सारा 1 2 ऐसे दे दिया, बट बस उतना ही आया। उसके बाद मैं पेपर सॉल्व करने लगी, उसके बाद ये थॉट नहीं आया कि यार कैसे होगा ये सब कुछ नहीं आया। तो बहुत डिफ़िकल्ट पेपर था, बट मेरी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी थी। लाइक आई डिड माई स्टैटिक रियली रियली वेल, और मैंने सब कुछ कवर किया था जो भी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रीलिम्स की, तो मैंने वो किया। एंड आई प्लेड डिफेंसिव इन दैट पेपर, मतलब कि मैंने अटैकिंग मोड में नहीं किया। मतलब जो क्वेश्चन मुझे आते थे इन विच आई वॉज रियली श्योर, वो मैंने अटैम्प्ट किए, और मैंने कोई भी ब्लाइंड गेस नहीं लिया था। लाइक एक भी नहीं दिया था, ये मैं बोल सकती हूँ। मैं नॉट इवन वन ब्लाइंड गेस आई टुक। ऑफकोर्स क्या होता है ब्लाइंड गेस, क्या होता है कि जिसमें चारों ऑप्शन के बारे में आपको कुछ आइडिया नहीं है, फिर भी आप लगाए जा रहे हो। नहीं, अगर आपको 50% आइडिया है, आपने 2 एलिमिनेट कर दिए हैं, और 2 क्वेश्चन लाइक 2 ऑप्शंस में आपको डाउट है, ऑफकोर्स यहाँ पे सब लोग चांस लेंगे, आपको भी चांस लेना चाहिए। मैंने भी लिया, इसमें मैंने किया जब जहाँ तक मैं 50% श्योर हूँ कि इन दोनों में से होगा आंसर, वो लिया मैंने। पर ब्लाइंड गेस एक भी नहीं लिया था। और मैंने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, एज़ फार एज आई रिमेंबर मैंने 70 to 75 क्वेश्चन के बीच में अटैम्प्ट किया था। शायद 72 के आसपास किया होगा मैंने, इतना ही किया था। और ये दे के मैं आ गई थी बस, और इसमें हो गया था काम, ठीक है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि हाँ अटैम्प्ट एज मच एज यू कैन, नो, डोंट फॉलो एनी बडी, ठीक है। कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं कोई पहले से डिसाइड करके जा ही नहीं सकता है। डोंट डू दैट मिस्टेक। मैंने की थी ये मिस्टेक। क्या हुआ था कि मैंने 23 का पेपर में 72 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, क्योंकि उतने ही हो पा रहे थे विदाउट टेकिंग अ ब्लाइंड गेस। मैं आ गई थी छोड़ के, मतलब मेरे को लग रहा था कि ठीक है यार बहुत डिफिकल्ट पेपर है, ऐसा नहीं है कि सबको लाइक कोई नहीं अटैम्प्ट कर सकता। तो मुझे ये भी नहीं पता कि बाकी लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए, मेरे से इतने ही हुए। और मैंने सोचा था कि मैंने ये सोच गई थी कि ब्लाइंड गेस तो नहीं लेना है, जितने मुझे आते हैं उतने किए। एंड आई थिंक मेरे नेगेटिव मार्किंग फिर बहुत कम हुई होगी, क्योंकि मैंने एकदम शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस मैक्सिमम अटैम्प्ट किए थे। तो ये किया। तो ऐसा मत करना कि हाँ 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, 80 अटैम्प्ट करें, नो, बिकॉज यू विल बी जस्ट रिलेटिवली राइट। जैसा और लोगों ने परफॉर्म किया है वर्सेस उनके कंपैरिजन में आप कैसे परफॉर्म करोगे, दैट विल मैटर। तो कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं ये कभी भी प्री डिसाइडेड नहीं हो सकता है, या आप ऑन द स्पॉट ही डिसाइड करोगे। तो ये था। सो अगर हम कंक्लूड करें तो प्रीलिम्स इज़ ऑल अबाउट स्टैटिक, इसको हम नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इसके मैंने आपको सारे सोर्सेज बता दिए हैं, एंड दैट इज़ वेल ट्रस्टेड एंड वेल वर्कड सोर्सेज जो मैंने फॉलो किया। ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, कुछ लगता है, तो आप प्लस माइनस डेफिनेटली ज़रूर करना, ठीक है। उसके बाद बेसिक्स, अपने बेसिक्स को इतना स्ट्रांग रखना है कि पेपर कैसा भी आए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमें 70 क्वेश्चन ठीक से करने हैं, वो हम कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिक्स को अच्छे से करना, मतलब ठीक है 60 70 जितने भी करने हैं। एंड उसके बाद स्टैटिक आता है, बेयर मिनिमम करंट। अब करंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, इसलिए मैंने बेयर मिनिमम रखा है। बेयर मिनिमम क्यों? बिकॉज यू शुड नॉट लैग बिहाइंड अदर्स। इसका मतलब क्या है, अगर कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन आया करंट से जो कि मैगजीन में साफ साफ दिख रहा है कि हाँ सब कर लेंगे इसको, वो आपको मिस नहीं करना है। तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करना है जो बाकी लोग कर रहे हैं और आप जो बहुत ईजी है जो सब लोग करेंगे वो आपको डेफिनेटली करना है। अगर 80% जनता ऐसी है जो ये क्वेश्चन कर पा रही है तो यू शुड बी इन दैट 80%, ठीक है। वो कह रही हूँ मैं। इसके लिए बेयर मिनिमम करंट ज़रूरी है। ओवरलोड नहीं करना है, लेकिन बेयर मिनिमम को छोड़ना भी नहीं है। ये करना है स्टैटिक बेसिक्स। कॉन्फिडेंस आपको 100% होना चाहिए, और ये 100% कॉन्फिडेंस ज़रूर आएगा अगर आपका स्टैटिक श्योर होगा। एंड उसके बाद सिली मिस्टेक्स, हाँ सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। सिली मिस्टेक्स कैन रियली मेक योर गुड प्रीलिम्स इनटू अ बैड प्रीलिम्स। ये सिली मिस्टेक्स कब होंगी? जब आपका रिवीजन प्रॉपर नहीं होगा, जब आपने मॉक्स नहीं लगाए होंगे, क्योंकि PYQ नहीं देखे, प्लस हमें मॉक्स मतलब MCQ देने की आदत नहीं है, उसमें मिस्टेक कर रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ने में मिस्टेक कर रहे हैं, वो मत करना। रिवाइज प्रॉपरली, अच्छे से टेस्ट दें, ठीक है। तो दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड। जो भी मुझे बताना था मैंने आपको बता दिया अबाउट GS1। अब क्या है कि सो दिस वाज योर फर्स्ट लेक्चर ऑन प्रीलिम्स। अब आई वाज थिंकिंग कि मैं प्रीलिम्स की 3 4 वीडियोस की पूरी सीरीज़ ले आऊँ, जिसमें मैं इन सब चीज़ों के बारे में बात करूँ कि आपको टेस्ट सीरीज़ को किस तरीके से यूज़ करना है, प्लस उसके नोट्स आप कैसे बना सकते हो। फिर शेड्यूल, हाँ मतलब अगर किसी को चाहिए होगा तो आई कैन ऑल्सो टेल यू द शेड्यूल एंड हाउ आई मैनेज टू डू 3 साइकिल्स ऑफ रिविजन, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी, अगर किसी को कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है यू कैन टेल मी इन कमेंट्स, आई विल ब्रिंग अ डिटेल्ड स्ट्रैटेजी
ऑन दैट सब्जेक्ट, ठीक है। एंड हाँ, उसके बाद सी सैट स्ट्रैटेजी, दिस तो आई विल डेफिनेटली ब्रिंग, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो मैंने प्लान की हुई हैं कि मैं इसके बारे में ले आऊँगी अगली वीडियोस। टेस्ट सीरीज़ के बारे में मुझे आपको क्या बताना है वो मैं बता देती हूँ एक बार। देखो, टेस्ट सीरीज़ सबसे पहले तो ये है कि कुछ लोग पीडीएफ में सॉल्व करते होंगे, कुछ लोग हार्ड कॉपी में टेस्ट लेके आते होंगे। अब इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं ना, वो भी बहुत बड़ा हेडेक है कि इसके सॉल्यूशन को यूज़ कैसे किया जाए। तो मैंने जैसे किया था, मैंने हार्ड कॉपी में टेस्ट लाती थी मैं, और अगर उस हार्ड कॉपी का मेरे पास ऑनलाइन पीडीएफ होता था टेस्ट का, तो मैं क्या करती थी, सॉल्यूशंस को पीडीएफ में खोल लिया और अपने लैपटॉप पे इसके जो सॉल्यूशंस हैं हाईलाइट करके कॉपी पेस्ट कर लिया। तो मैं सॉल्यूशंस को इस तरह से कॉपी पेस्ट करके एक अलग नोटबुक बना लेती थी वन नोट पे, ठीक है। अब ये मेरा वन नोट अभी खुल नहीं रहा है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखा देती। तो अगले वीडियो में लाइक कुछ टाइम बाद मैं ट्राई करूँगी इसको खोलने का, तो मैं आपको दिखा दूँगी कि वन नोट पे आप टेस्ट के सब्जेक्ट वाइज नोटबुक्स कैसे बना सकते हो और कितने अच्छे से आप इन सब चीज़ों को लाइक, इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा इसका। और ये आप मतलब लाइक बिलीव मी, टेस्ट सीरीज आर अ वेरी वेरी गुड सोल्यूशन टू ब्रॉडन योर नॉलेज एंड कवरेज प्लस इंक्रीजिंग योर कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। सो यार, दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन डेफिनेटली आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट।